करें कि shall, really confusing, right? कि will यूज करना है कि shall यूज करना है। फिर मैंने क्या कहा था आपको, I told you, I'm revising, I told you कि देखो बेटा, जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो हमेशा क्या यूज किया जाता है, will, right? We use will for spoken English, right? And for the written, we use shall. Like when you read novels, when you read literatures, जब literatures और novels में आप देखोगे, you will find that they are using shall a lot right there because of written English, जो लिखा है, लिखा हो जहाँ होता है, right? But spoken में मतलब मेरा मतलब है जब आप नेटिव स्पीकर से मिलेंगे, when you go to a place where people are speaking in English, right? English is their native language. So when they speak in general, they use will, right? But there is a rule. There is a rule according to the British rule. When you are making questions, things become quite different. How? जैसे एक सेंटेंस बोलती हूं मैंने कहा क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? I want to say क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? तो मैं क्या बोलूंगी, क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? Shall I start the class? Very good. Shall I start the class? I said, shall I start the class? क्या मैं स्टार्ट करूं क्लास? कभी आपने will I नहीं सुना होगा, राइट? बड़ा अजीब लगता है क्योंकि shall I सुना है, क्योंकि shall I करेक्ट है। इसका मतलब जब आप किसी से परमिशन लेते हो, जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हो, तब आप, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो रिटन ग्रामर हो, आप हमेशा वहां यूज करते हो shall. Shall is used with only two subject in question sentences, right? First is I and second is we. Like, shall we start? Shall I tell you something? Shall I teach you a new topic today? Right? So shall I, shall we when it comes to question sentence, right? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, you can see here there's a chart, very simple one, right? Okay, so हमने देखा present. You know guys, when you are making sentence, तो वहां sentence में होते हैं verb. देखिए किसी भी sentence में verb नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, right? तो verbs होते हैं, right? अगर किसी sentence में एक verb है तो वो main verb होता है, right? But किसी sentence में दो verb होंगे तो एक helping verb होता है, एक main verb होता है. Am I right or not? Okay, so देखो, जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, जब हमने पास्ट टेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था डू और डज बताया था मैंने आपको। डू क्या होता है, डज क्या होता है, डिड क्या होता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सो हियर इन दिस सेंटेंस आई डू नॉट नो, तो जो डू है, शांतनु बेटा अगर आवाज आ रही है आसपास तो म्यूट कर लीजिए, है ना? अगर do not मैंने बोला I don't know, that means जो do है वो helping verb है और no क्या है, no is a main verb here, right? Wow, very nice song and I love this Aarti, but for the time being you could you please mute yourself. आरती बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, मतलब मुझे बहुत पसंद है ना? बड़ा अच्छा लग रहा है, मंदिर में हूं मैं, बट अभी फिलहाल बस बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई वांट यू टू म्यूट योरसेल्फ, यस, है ना? बट बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनकर, ये म्यूजिक सुनकर ना मन में बड़ी शांति मिलती है। कैसे बोलेंगे मन में शांति मिलती है? हाउ वुड यू से मन में शांति मिलती है जब ये मैं म्यूजिक सुनती हूँ? हाउ वुड यू से? सौम्या, वर्षा, My brain relax. My brain relax. I feel relaxed when I listen to this song, right? I feel relaxed. I feel chilled. I feel chilled or relaxed when I listen to this song. It soothes my mind. क्या बोलेंगे? It soothes my mind. मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, दिमाग को तरोताजा फील होता है, अच्छा लगता है, right? It soothes. SOOTH. मैं ना chat box में लिखती हूँ. Let me write in the chat box now. है ना? It soothes my mind. क्या बोलेंगे? It soothes. 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 It के साथ suits लगेगा, ऐसा आएगा. It suits my mind and soul, right? So that's why I was saying, right? Suits मतलब राहत देना, relaxed feel होना, right?
है ना? You will tell me after second half, I mean first half, you will tell me कि what suits your mind. ऐसी कौन सी चीजें जिसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है? Like many people love painting. When they do painting, painting suits, painting suits their mind. What is that for you, right? You will tell me after some time. Okay, so मैंने कहा कि do और does होते हैं helping verb. कहाँ? प्रेजेंट टेंस में डू और डज होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट में क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब? डिड. डू और डज का पास्ट क्या होता है? डिड, राइट? बट फ्यूचर टेंस, अगर मैंने कहा मैं कल आपकी क्लास लूंगी, आई विल take your class tomorrow. The simplest tense is future tense. Future tense सबसे simple tense होता है I will take your class tomorrow, right? So if I say I will take your class tomorrow, तो take मतलब होता है लेना. So take is main verb here. तो will क्या होगा? Will होगा main verb की helping verb. Yes, बताइए. राहुल, शांतनु, Alok, all are here, right? Sapna is also here today. Varsha, you are also here. Can you the question? यहाँ पे voice बहुत break हो रही थी. हाँ, voices always breaks. Soumya, I think you should change your place where you are sitting daily, na? You should change your place because you always face that network problem, right? Okay, so will and shall both are helping verbs. Will और shall क्या होते हैं? They are always. I'm saying they are always helping verb, right? तो will और shall helping verb होता है कहाँ पर? Future tense में. They are helping verb in future tense, right? Okay. यहाँ क्या लिखा है? नोट करते हैं. IV questions should be made with shall. We may use will also, but preferable in shall. मतलब I और V के साथ हमेशा shall ही यूज करिए आप, है ना? will भी यूज कर सकते हैं, पर shall को ही हमें प्रेफरेंस देना है. स्पेशली क्वेश्चन सेंटेंस में अगर आप will यूज करेंगे, that will be wrong. जैसे यहाँ लिखा है shall I go? This is correct. If you say will I go? No. मॉडर्न इंग्लिश में लोग बोलने लगे हैं. मॉडर्न इंग्लिश अंडरस्टैंड मेनी पीपल. मॉडर्न इंग्लिश पता है क्या है? क्या होता है? आपको मान लीजिए आपको किसी चीज का ग्रामर नहीं पता, ठीक है? अब आपने बोल दिया will I go. जिसने सुना उसने भी बोला will I go. तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, पांचवे ने सुना, सब बोल रहे हैं will I go. वो इतना ज्यादा आ जाता है यूज में. कोई सेंटेंस गलत है बट वो यूज में इतना आ जाता है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट एवरी टाइम इन जनरल. तो फिर वो मॉडर्न इंग्लिश में आ गया है. बट जनरली अगर आप देखें तो shall I go is correct. क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? Okay, Yes, ma'am. mind suits art, music and dance. Your sentence is wrong, Lakshit. You should write music, art and dance soothe my mind. Your sentence should be, Lakshit, music, art and dance. You have three things with you. आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको आर्ट पसंद है. तो तीन चीजें हो गई हैं भाई. तीन चीजें मतलब प्लूरल. तो सूद्स नहीं आएगा, soothe आएगा. soothe, SOOTHE. So your sentence should be art, music and dance soothe my mind. SOOTH. soothe होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्लूरल हो गया है. क्लियर है लक्षित? ओके, राइट. जैसे लक्षित ने लिखा ना, आप लोग को भी लिखना चाहिए. जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट सूट्स योर माइंड, यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स. उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत लिख रहे हैं, कहाँ सही लिख रहे हैं. राइट. सो व्हाट इज फ्यूचर टेंस? द एक्शन ऑफ फ्यूचर मतलब टुमारो. टुमारो मतलब क्या होता है? कल. लाइक what is tomorrow? It's Friday tomorrow, right? What is Saturday? When is Saturday? Saturday is day after tomorrow. So कल मतलब होता है tomorrow. Day after tomorrow में मतलब परसों. आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मुझे बताना था. Next day, next month, next year, upcoming, later. This is called later. इसे क्या बोलेंगे? How will you pronounce this? Later. देखिए, एक होता है letter. LETTR, लेटर मतलब पत्र. उसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हो? लेटर.
You pronounce it. What do you pronounce? How do you pronounce, guys? Letter. Letter. Yes. But बाद में को English में बोलते हैं later, right? So the correct pronunciation will be later. Letter, later, letter, later. So letter means patra, khad, and later means बाद में. So letter, later, right? Mind it. ना इसको ध्यान रखिए. Now प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी. आपने कभी भी, अगर आपको फ्यूचर टेंस थोड़ा सा सीखना है, मतलब वो तो इजी है, तो वेदर फोरकास्टिंग होती है. जो बारिश कब होगी, बर्फ कब गिरेगी, कहाँ क्या होने वाला है, तो मौसम के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होती है. दैट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग, है ना. इंग्लिश में देखा करो, वेदर के जो न्यूज होते हैं ना, एक बार आज क्या करना, जो वेदर के जो न्यूज होते हैं ना, उनको इंग्लिश में देखना, यूट्यूब चैनल पे डालना, और वेदर की जो फोरकास्टिंग होती है उसको इंग्लिश में देखना वो हाउ काइंड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दैट पर्सन इज यूजिंग. वो पूरा फ्यूचर में बोलेगा आपको, देखना, है ना. आप ऐसी चीजें किया करो, चैनल पे जाना, वेदर लिखना, वेदर फोरकास्टिंग फॉर दैट डे. अबाउट योर सिटी भी पूछ सकते हो, इंडिया के बारे में पूछ सकते हो, अपनी सिटी के बारे में इंग्लिश में लिखना. और जब आप टाइप करोगे तो वो इंग्लिश में आएगा, वेदर फोरकास्टिंग, राइट. तो फोरकास्टिंग मतलब होता है भविष्यवाणी. लाइक एस्ट्रोलॉजिस्ट, जो ज्योतिषी होते हैं, दे डू फोरकास्टिंग, they do prediction of your future, right? Okay. And the third use of future tense is future planning, right? If I ask you, what is your plan for Raksha Bandhan? Are you in your hometown, or are you going to your hometown to enjoy this day with your, especially your brothers and sisters, right? So you tell me, where are you right now, and when are you going for your Raksha Bandhan, and how are you going to plan this? What kind of Raksha Bandhan are you going to enjoy this coming month or this month, right, guys? So you are going to tell me about your Raksha Bandhan plans, right? तो फ्यूचर प्लान्स में आज हम रक्षाबंधन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके क्या प्लान्स है, व्हाट आर प्लान्स, योर शॉपिंग, योर व्हाटएवर यू आर डूइंग टू डू, राइट. सो आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, इट्स यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, एंड थर्ड इज फ्यूचर प्लानिंग. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद स्ट्रक्चर हम देखें, बहुत ही इजी होता है स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस में, बहुत ही इजी होता है. आप देख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. पॉजिटिव सेंटेंस, गाइस बी रेडी विथ योर प्रेजेंटेशन. हाँ एवरीबडी. अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस. जो नहीं आए थे वो सुन सकते हैं. दोज हु वर एब्सेंट दे कैन लिसन, राइट. दे हैव टू लिसन, है ना, बस सुनना है उनको. अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मींस नेगेटिव, नॉट, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, एंड इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन प्लस नॉट, राइट. सो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है सीधा सीधा. अब मैं इस सेंटेंस को हिंदी में बोलूंगी और आपको इंग्लिश में बोलना है. जो लिखा है वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी. आई एम चेंजिंग माई सेंटेंस. ओके. अब मैं बोल रही हूँ, मैं रक्षाबंधन पे अपने घर जाऊंगी. मतलब मैं अपनी मदर के घर जाऊंगी रक्षाबंधन पे. तो कैसे बोलेंगे, ट्रांसलेट कीजिए. Yes. Come on guys, it's very simple. मैं रक्षाबंधन पे अपने मम्मा पापा के घर जाऊंगी. On Raksha Bandhan, I go to my father and mother home. Okay. So I will. क्या सेंटेंस कैसे बनाओगे? I बनाओगे ना. देखो, जब आप सेंटेंस, when you are making sentence, you will make sentence with subject. I subject से बनाओगे ना. I मतलब मैं. I will go to my mother's home, है ना. I will go to my mother and father's home in Raksha Bandhan. On Raksha Bandhan, है ना, on आएगा. So I will go to my parents' home on this coming Raksha Bandhan. Very good. Okay. मैं शॉपिंग नहीं करूंगी. कैसे बोलेंगे, मैं शॉपिंग नहीं करूंगी? I will not go to shopping. I will not go. अच्छा, शॉपिंग पे जाने को ध्यान दीजिए सपना. शॉपिंग पे जाने को हम go to नहीं बोलते, go for बोलते हैं. पता है क्यों? मैंने आपको एक दिन बताया था कि I go for morning walk. हम बोलते हैं ना I go for morning walk. क्यों बोलते हैं? क्योंकि when you go for morning walk,
कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप ईस्ट में भी जा सकते हो, वेस्ट में भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मार्केट भी ऐसी चीज है जहाँ दुकान दिख जाए वहीं आप चले जाते हो। अरे वाह, क्या तो मस्त ड्रेस है यार, मुझे ये खरीदनी है। अरे यार पिज्जा खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म समोसे निकल रहे हैं, चलो समोसे खा लेते हैं, राइट। आई मीन कहीं भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में कोई पर्टिकुलर जगह थोड़ी ना है। आई गो टू स्कूल होता है, क्योंकि स्कूल एक डायरेक्शन बताता है, टू बताता है डायरेक्शन। स्कूल एक जगह पर पहले से है, स्कूल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बट मार्केट चलती फिरती जगह है। इसलिए जब आप शॉपिंग की बात करते हो, मार्केट ठीक है, यहाँ पर आई गो टू मार्केट सही है, बट शॉपिंग वाली बात हो रही है ना, शॉपिंग करना, तो उसमें आप घूमते हो, है ना, आप घूमते हो उसमें, तो आप बोलोगे आई विल नॉट गो फॉर शॉपिंग। इसलिए गो के साथ फॉर आता है शॉपिंग के लिए, सो आई विल नॉट गो फॉर शॉपिंग। अच्छा, अगर मुझे बोलना है क्या मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी, तो कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू से? Shall I go to shopping? Shall I go for shopping? क्या बोलेंगे? Shall I go for shopping? क्लियर है? ओके, shall I go for shopping? ओके, चलिए अब आपको बोलना है कल मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। कैसे बोलेंगे कल मैं प्रेजेंटेशन दूंगी? Tomorrow I will give presentation. Very good. Tomorrow I will give presentation, or I will give presentation tomorrow. अच्छा, अच्छा, कल मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी। कैसे बोलेंगे कल मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी? Tomorrow I don't. हाँ, tomorrow I don't होगा कि I will not होगा? Tomorrow I don't होगा कि I will not होगा? I will not. I I will will not. not. I will not give presentation tomorrow. अच्छा, क्या क्या कल हम प्रेजेंटेशन देंगे? यहाँ ये वाला सेंटेंस वाला सेकंड वाला वर्ब, क्या हम कल प्रेजेंटेशन? Shall we give presentation tomorrow? Very good. Shall we give presentation tomorrow? Very nice. Shall we give presentation tomorrow? Okay, that's good. फिर से आपको बोलना है राहुल कल प्रेजेंटेशन देगा। कैसे बोलेंगे राहुल कल प्रेजेंटेशन देगा? Rahul give presentation tomorrow. राहुल will give presentation tomorrow. अच्छा, अब आपको बोलना है सपना कल प्रेजेंटेशन नहीं देगी। Sapna is. सपना will not. सपना will not. presentation tomorrow. Very good. सपना will not give presentation tomorrow. Will not मतलब won't. अच्छा, very nice. अब आपको बोलना है कल वो मेरे लिए पाव भाजी बनाएगी। How will you say कल वो मेरे लिए पाव भाजी बनाएगी? Tomorrow Yes, she make pav bhaji for me. She will make pav bhaji for me tomorrow, right? Tomorrow last में आ जाए तो कोई ज्यादा better है। She will make pav bhaji for me tomorrow. Very nice. Okay. Sorry madam, मैं कल क्लास अटेंड नहीं करूंगा। कैसे बोलेंगे? सॉरी मैम, कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। I will not. Sorry ma'am, I don't. I don't नहीं होगा, I don't नहीं होगा ना, I don't नहीं होगा ना बेटा। I want. I want. I want. I I want. want. I want not attend the class tomorrow. Tomorrow. Okay. चलिए, क्या हम कल क्लास अटेंड करेंगे? क्या हम Shall we? Shall we Shall attend the class tomorrow? Shall we attend the class the tomorrow? class tomorrow? Okay, very nice, very good. Okay, चलिए, तो क्लियर हो गया आप लोग को। तो I will. अच्छा, अब आपको क्या बोलना है? I'll. How will you pronounce this I'll? जैसे I will को क्या बोलते हैं? I'll. What will you say? We will को बोलेंगे? That's good. We will को बोलेंगे will. Will. Will study. अच्छा, आपको थोड़ा सा लगता होगा कि यार ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, I'll, will, they'll, you'll, ये हमको सुनने को तो मिलती नहीं है, फिर बड़ी सी मतलब इतना जनरल नहीं लगती है, हमें लगता है कि यार ऐसा आर्टिफिशियल सा है ये। बट अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे, स्पेशली हॉलीवुड मूवीज देखेंगे ना, अगर आप उसको डबिंग करके ना देखें, आप उसको डायरेक्ट वैसे देखेंगे ना, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो वो आई विल कभी नहीं बोलते, दे से I'll. You observe, will, they'll, I won't. They say like this, they speak like this. That's why I told you once कि in movies तो देखना सबको पसंद है, तो why don't you watch a Hollywood movie once a week?
And you should watch motivational. जैसे बच्चे आप लोग हैं, आप लोग motivational movies भी देखनी चाहिए. There are many motivational movies, right? One of the motivational movies that I love is that is animated movie Panda, Kung Fu Panda. Earlier I thought ki Yes, ma'am, I see the Kung Fu Panda. but I didn't. Yes, I didn't watch in dubbed. I didn't watch dubbed one. I watched in English. That right? English बहुत अच्छी है उसमें. ऐसी बहुत tough English नहीं है, क्योंकि वो बच्चों के लिए बनाई है, motivational movie है. तो बहुत clarity उसमें जो भी dubbing की गई है, बहुत clarity से की गई है. बिल्कुल अच्छे से बोलता है उसमें. You listen to that. Okay. So ठीक है. तो want मतलब will not and बाकी तो आपको पता है. ठीक है. चलिए अब ये तो पूरा प्रेजेंटेशन टाइप का है. ठीक है. अब कुछ और नई चीजें हम पढ़ना चाहेंगे. नई चीजें पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, मैं सबसे एक एक करके पूछती हूँ, है ना. लेट्स प्ले अ गेम. आई विल आस्क यू सम सेंटेंसेस फॉर ट्रांसलेशन. फ्यूचर टेंस के भी हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी हो सकते हैं, पास्ट टेंस के भी हो सकते हैं. जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कुछ नए तरह के एक्सप्रेशंस बताऊंगी. ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो बताऊंगी. ठीक है. तो सबसे पहले मैं कॉल करने वाली हूँ शांतनु को. शांतनु, ओपन योर माइक एज वेल एज कैमरा. आई विल आस्क यू. अच्छा, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों को क्या करना है? चैट बॉक्स में लिखते जाना है. जो मैं पूछती जा रही हूँ उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देते जाना है. एवरीबडी हैज टू. ठीक है. बस आप देते जाना तो मैं करेक्ट करती जाऊंगी. ठीक है. चलिए, शेल वी स्टार्ट? शेल वी स्टार्ट? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, सोनू का मैसेज आया था क्लास में कि मैडम लिंक नहीं दिया है आपने. इट वाज, आई थिंक इट वाज 650 कितना कुछ था. 650 पे आया था उसका मैसेज, है ना. ओके. So but he is not here right now. He asked me, Adam, कि मैडम मुझे लिंक नहीं मिली है. मतलब सोनू इज लिटिल वरीड अबाउट द लिंक्स, कि लिंक मिलती है कि नहीं मिलती. मैं हमेशा 7 से पहले, तो 7 बजे से पहले लिंक दे ही देती हूँ. एनी हाउ बहुत कम होता है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 के बाद, मतलब 7 o'clock के बाद मैंने कभी आपको लिंक दी है. फिर भी आप लोग को 7:10 7:15 तक वेट करना चाहिए. डोंट पैनिक. कभी कभार क्या होता है, लैपटॉप हैंग हो रहा होता है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं. बट आई ऑलवेज गिव यू लिंक बिफोर 7 या 7 पे भी दे देती हूँ. 7:05 से ज्यादा तो कभी हुआ ही नहीं होगा, राइट. बट ही वाज सेइंग बट ही हैजंट कम. ही वाज आस्किंग फॉर द लिंक बट ही इज नॉट इन द क्लास राइट नाउ. ओके, चलो. सो लेट्स बिगिन. तो शांतनु, आपको बोलना है कल मैं भगवान के दर्शन करने गया था. अब मैं ऐसे सेंटेंस ही पूछूंगी. कल मैं भगवान के दर्शन करने गया था. यू आर इन पुरी, राइट. तो आपको बोलना है मैं कल भगवान के दर्शन करने गया था. अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है. प्रैक्टिस टाइम मतलब फ्यूचर प्लस सारे सेंटेंस. तो आप बाकी लोगों को लिखना है यहाँ पर. बाकी लोग बोलेंगे नहीं, दे हैव टू राइट. दर्शन करने को क्या बोलते हैं? कि मैं भगवान के दर्शन करने गया था. Yes, Shantanu, are you here in the class? Where are you? Last time also you, and I mean, didn't say anything. You didn't reply. I thought that it was network issue, last time. Yes, if you are not able to say, you just say, ma'am, I don't know how to say this. You just ask me, right? Okay. Sapna, you tell me. कैसे बोलेंगे? Yesterday I visit to God. बेटा लक्षित, पास्ट टेंस है, कल की बात है. जब अगर पास्ट की बात होती है, विजिट का विजिटेड होगा ना, सेकंड फॉर्म आएगा ना. आप लोगों ने पास्ट तो पढ़ा होगा, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. आई विजिटेड गॉड यस्टरडे. और यू कैन से आई वेंट टू विजिट गॉड यस्टरडे. मैंने कल भगवान के दर्शन किए. आई वेंट टू विजिट गॉड यस्टरडे इन द टेम्पल, और आई विजिटेड गॉड. आर यू हियर? Can you hear me? क्या बोलेंगे? Can you hear me? है ना? Yes, I can hear you now. Yes, I can hear you. Yes, Shantanu. Where were you? I'm fine, ma'am. मेरा माइक को क्या हो गया है पता नहीं चला. मैं बोल रहा हूँ मैं, बट सुनाई नहीं दे रहा. It's okay, no problem. चलो. So next sentence है, कल आप कहाँ थे? अगर मुझे किसी से पूछना है, कोई बच्चा नहीं आया, मुझे पूछना है कल आप कहाँ थे, तो कैसे बोलेंगे कल आप कहाँ थे?
Where are you here in yesterday? Where? बताइए where? Where are you here in yesterday? Where were you yesterday? क्या बोलेंगे? Where were you yesterday? सेंटेंस क्या होगा? Yesterday. Where were? Where मतलब कहाँ और were मतलब थे. Where were you yesterday? बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, टीचर्स पूछते हैं where were you yesterday, right? Okay. अच्छा, अब आपको बोलना है संडे को मैं मूवी देखने जाऊंगा. वेरी गुड लक्षित. सैटरडे को मैं मूवी देखने जाऊंगा. कैसे बोलेंगे सैटरडे को मैं मूवी देखने जाऊंगा? I'll go for a movie in Saturday. ध्यान दो. I will go to watch a movie on Saturday. डे के पहले ऑन लगता है तो क्या होगा? I will go to watch a movie on Saturday. ये सही सेंटेंस होगा. क्लियर है ना? सेंटेंस बिल्कुल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. इसलिए तो मैंने पूछा कि आप लोग कितना बना पा रहे हो. तो I will go to watch a movie on Saturday. Very good आलोक. Nice. Okay. अब आपको बोलना है क्या हम कल कुछ नया सीखेंगे? क्या हम कल कुछ नया सीखेंगे? क्या हम कल कुछ नया सीखेंगे मतलब फ्यूचर है ना. कैसे बोलेंगे क्या हम कल कुछ नया सीखेंगे? नो आइडिया. एनीबडी? राहुल, लक्षित, आलोक, सपना. गाइस यू आर नॉट. नहीं यू. हाँ यू जस्ट स्पीक. हाँ बोलो बेटा. लक्षित बोलो. Shall we study new thing tomorrow? Ma'am, I also. Shall. Very nice. Shall we learn? Study तो ठीक है, learn मतलब सीखना. Shall we learn something new? क्या हम कल कुछ मतलब something. क्या हम कल कुछ नया सीखेंगे? Shall we learn something new tomorrow? Ma'am, my sentence also same. Very nice. That's good. So you can write in the chat box. Okay. Okay. Now next is Rahul. Rahul, it's your turn now. Rahul, are you here in the class? Hello. हेलो राहुल. मुझे लगता है राहुल क्लास में है भी और नहीं भी है. He has gone somewhere else, right? चलो. So but guys, Rahul is in class. Rahul is in the class, but he is not in the class. You're not getting my point, beta. Because this is this is your not your offline class where you can see the people where are they, right? It's your online class. They go anywhere, right? Everything is he's online but not present the class, right? Okay. Chalo Alok, you tell me, are you present the class? Hello. Yes, ma'am. Thank God. मुझे लगा आप भी गुल हो गए. Yes, ma'am. Okay, चलो ठीक है. आपको बोलना है कल मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया था. कल मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया था. Yesterday I Yesterday I called my friend. Yesterday I called my friend. क्या होगा? I called my friend. आप लोगों ने सोचा नहीं होगा ना कि मैडम आज इतने सारे सेंटेंस पूछ लेंगी पुराने वाले, है ना? Yesterday I called my. Actually बहुत सारा पढ़ चुके हैं. फ्यूचर हो गया, पास्ट फ्यूचर आज पढ़ा रही हूँ. प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया. इसलिए मैं सोचा टेस्ट ले लूं. अच्छा ठीक है. अब आपको बोलना है आपको बोलना मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा. हाउ विल यू से मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा? I will become a good speaker. Very good. I will become a good speaker. Very good, Lakshit. Yesterday I called my friend. Okay, it's okay, no problem, Rahul. You are facing network problem. It's okay, no problem. But you are always active in the class. That's why I was thinking that Rahul is here in the class. That's why I asked you some questions, right? Okay, it's okay, no problem. चलिए, okay. अब आपको बोलना है क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है आलोक? क्या तुम्हें याद है? कैसे बोलेंगे क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? डू यू रिमेम्बर? क्या बोलेंगे? डू यू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर?
मतलब आप लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस मुझसे पूछा करो, मैडम इसको कैसे बोलेंगे, डू यू रिमेम्बर को कैसे बोलेंगे, मतलब इसे कैसे बोलेंगे, हाउ टू से दिस, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसे कैसे बोलेंगे, हाउ टू से दिस, राइट। ओके चलिए, ओके चलिए, छुपा रुस्तम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डार्क हॉर्स, क्या बोलते हैं छुपा रुस्तम को? डार्क हॉर्स। याद है आप लोगों को? डार्क हॉर्स यस मैम। ये क्या है? मुहावरा, इडियम। ठीक है चलिए बताइए, भुलक्कड़ को क्या बोलेंगे? आपका पुराना टेस्ट हो रहा है, भुलक्कड़ को क्या बोलते हैं गाइस? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल, वेरी नाइस। भुलक्कड़ को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पुराना। फॉरगेटफुल। अरे इसकी तो नाक बह रही है, कैसे बोलेंगे उसको? सर्दी है, इसकी नाक बह रही है। he's Nose is running. His nose is running. His nose is running. Okay. Now next sentence आया ये वाला, डू यू रिमेम्बर ना, पुराने जो स्लाइड्स है ना वहीं पर मैं लिख रही हूँ। चलो ठीक है, ओके 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 चलो। सो नेक्स्ट इज लक्षित, योर टर्न, यू टेल मी। अब आपकी बारी है। ठीक है, सोने पे सुहागा को क्या बोलते हैं लक्षित इंग्लिश में? आपने कल पूछा था ना, सोने पे सुहागा एक सेंटेंस हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सोने पे सुहागा। भाई चाय बन रही है और पकौड़े मिल जाएं भाई, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बारिश में गरम गरम चाय और पकौड़ा, वाह, राइट, समथिंग लाइक दिस, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा किस किसे बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था। एनीबडी रिमेम्बर? सुहागा को आइसिंग ऑन, रिमेम्बर आपने आइसिंग ऑन केक आपने पूछा था परसों। You asked me day before yesterday, ma'am, how to say सोने पे सुहागा, right? That is called, नहीं मैंने पूछा था चार चांद लगा देना। हाँ सोने, अच्छा चार चांद लगा देना, उसी को बोलते हैं सोने पे सुहागा। सॉरी, दोनों का सेम मीनिंग है, तो उसे बोलते हैं आइसिंग ऑन केक, चार चांद लगा देना, राइट। और चेरी ऑन केक भी बोल सकते हैं, आइसिंग ऑन केक और चेरी ऑन केक, कितना प्यारा सा है ना इडियम ये। चलिए ओके, सो who is remaining? सपना, it's your turn now. सपना से थोड़ा सा पूछा जाए। ओके सपना, आर यू Yes, रेडी? ma'am. ओके Yes, सपना, ma'am. आप कहाँ थे? कैसे बोलेंगे आप कहाँ? नहीं सपना बोलेंगे। Where Where were you? were you? Where were you? सपना आप कहाँ थे? Where were you? ओके चलिए। अरे वो खराब है जो एक और व्हाइट वाला है, कौन सा व्हाइट वाला खराब है? पुराना है ये तो। पुराना है, कोई बात नहीं। चलो भाई, कौन बोल रहा है? राहुल की आवाज है क्या ये? वहीं रखा हूँ बिस्तर में। और वहाँ हम लोग को भी ध्यान नहीं कि हमने बहुत अच्छे से वहीं से रखा है, कहीं हम लोग यहाँ वहाँ नहीं लाए। यस मैम, इट इज राहुल। कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कहाँ थे हम? मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद भूल गई, आई फॉरगॉट वेयर वर आई। हाँ तो मैं सपना से पूछ रही थी, सपना अगर आपको बोलना है कि why are you laughing guys? Very bad. चलो कान बंद करो। वेरी बैड, आई नो, गलत बात है ना, वेरी बैड गाइज, बैड मैनर। चलो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? हाँ हाँ, क्या कल सपना आपने टेस्ट दिया था? मुझे सपना से पूछना है, क्या कल सपना आपने टेस्ट दिया था? सपना आपको बताना है, क्या कल आपने टेस्ट दिया था? I आपको ट्रांसलेट करना है, जो मैं बोल रही हूँ ना आपको उसको ट्रांसलेट करना है। क्या आपने कल टेस्ट दिया था? Yes. देखो सपना, पास्ट टेंस मैं पूछ रही हूँ, पास्ट टेंस, क्या आपने कल टेस्ट दिया था? ठीक है, डिड यू, भाई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, डू डस डिड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, तो हो जाता है डिड यू टेक टेस्ट यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो डिड यहाँ पर आएगा, डिड होता है हेल्पिंग वर्ब। कहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है? पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, प्रेजेंट में होता है डू और डज। याद है लक्षित, राहुल, सोनू, राइट, आपको याद है? तो क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, क्या आपने कल टेस्ट दिया था? डिड यू टेक टेस्ट यस्टरडे? वेरी गुड लक्षित, डिड यू टेक टेस्ट
yesterday, right? Okay, did you take test yesterday? ठीक है, अब आपको बोलना है नहीं मैडम मैंने नहीं दिया, तो कैसे बोलेंगे सपना? आप आई नो पास्ट टेंस की बात है, तो आपको बोलना है नहीं मैंने नहीं दिया। कैसे बोलोगे नहीं मैंने नहीं दिया? How I you, did not I did not take. take. अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपने पास्ट टेंस की क्लास अटेंड की थी?